How are you all students? Hope you all are fine. Let's start another session of the first chapter, and it is almost the last session of the chapter number first. Okay. In the last session we have discussed about the conservation of energy and the conservation of linear momentum. Conservation of energy you have studied in a lower standard, so you have remember and you have some idea about it. And I again repeating the conservation of the linear momentum. I explained what is the momentum in the last session, that is the multiplication of the mass of an object to the velocity or the speed of an object, and that is indicated by the P is equals to mv is the mathematical formula. Okay, so by the definition, the conservation of the linear momentum is if total external force, or you can say resultant force, F external is 0, then the total momentum or the momentum of the body remains constant. Okay, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. Again I am repeating, if the total resultant force acting on the system is 0, F external equals to 0 bracket में, then the linear momentum of the body remains constant. P is equals to constant. Okay. So, bit more understanding, or you can say the discussion about the theory of relativity. We have studied the conservation of energy, and in that session we have told in the definition the energy is converted from the one form of energy to another form of energy. Energy cannot be created, okay, it cannot be destroyed. So you have the idea of the conversion of the energy from one form of energy to another form of energy. Okay, means the heat energy is converted into the mechanical energy is converted to the electrical energy, etc. But the thing is like, is it true that matter, means the mass, can be converted to the energy? And that question is resolved by the Einstein. Einstein have presented the theory of relativity. Okay, and according to that theory, he explained that mass and energy both are interrelated. It means if you have the mass, you can convert it to the energy, and same way, reverse form, if you have energy, then you can create the mass. The second statement means if you have energy, you can create the mass. That we will generalize in the chapter nucleus in the particular topic, the mass defect. Okay, we also generalize that thing in a binding energy also, right? So in that topic, or at that time, we will discuss about it in detail. But right now, for your knowledge, you can say that the mass and energy both are interrelated. And the equation, very well-known equation of this conversion, it is the E is equals to mc square, where the E is the energy gained or energy retrieved from the mass, m is the mass of that object, and c square or c is what? The speed of light in the space. And that is the value, you can say that 3 into the 10 to the power 8 meter per second. Okay, so that is the mass energy relation, E is equals to mc square. Okay, so mass and energy can convert it
or mass can be converted into energy, energy can be converted into the mass, and vice versa. Right? So hope you get the mass energy relation. Next topic is the angular momentum or conversion of the angular momentum. अब आपने जो लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन आज मैंने स्टार्टिंग में बताया, दैट सेम डेफिनेशन आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो. खाली वर्ड क्या चेंज करने हैं वो देख लो. इफ एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is zero, then angular momentum of the body of the object remains constant. Okay, यानी कि वर्ड क्या खाली अलग है ये समझ लो. वहां पे क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फोर्स, राइट, और यहां पर क्या है, टॉर्क. ओके, तो इफ एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लगा देंगे, टॉर्क, टाउ एक्सटर्नल. जैसे फोर्स को एफ से इंडिकेट किया जाता है, टॉर्क को टाउ, जैसे उल्टा जे ऐसा सिंबल है उसका. ओके, सो टाउ एक्सटर्नल मीन्स टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, रिजल्टेंट टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, और यू कैन से टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करता है, 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, 3 डिमेंशन में, ओके, देन वी इंडिकेट इट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, राइट. बट वेन एवर द ऑब्जेक्ट रोटेटिंग, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तब उस पर हम फोर्स इंडिकेट नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम टॉर्क लग रहा है ऐसा बोलते हैं. Okay, so there is a bit difference in a fundamental, in a concept of the force and torque, but both are bit similar in the nature, by the nature, you can say that. Okay, यानी कि फोर्स और टॉर्क लगभग एक समान है, बट उसके कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है. फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, ओके, एंड अगर टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट करेगा. ओके, तो आपको पता है कि फैन रोटेशनल मोशन करता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता है, राइट. टॉप यानी कि यू कैन से, दूसरा एग्जाम्पल हम ले तो अर्थ, बिग ऑब्जेक्ट, ओके, फिर इलेक्ट्रॉन, वेरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट, दैट इज रोटेटिंग अबाउट द ओन पाथ, अबाउट द न्यूक्लियस, राइट. सेम वे टॉप, यानी कि रस्से से आप घुमाते हो तो वो ओन एक्सेस पे रोटेट करता है. सेम वे सीलिंग फैन, टेबल फैन ओन एक्सेस पे रोटेट करते हैं. तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो रोटेट करते हैं उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है. बाकी के जो भी मोशन है आप उसे फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यहां पर रोटेशनल मोशन में आपको वही फोर्स को टॉर्क के फॉर्म में शो करना पड़ता है. सो दैट इज अ बिट आइडिया अबाउट द टॉर्क एंड आइडिया अबाउट द फोर्स. फोर्स जनरल टर्म में आपको पता है, बट टॉर्क शायद आपके लिए नया है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है यहाँ पे. ओके, तो डेफिनेशन वाइज एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, ओके, उनका कन्वर्जन सेम है. इफ एक्सटर्नल टॉर्क तो एंगुलर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स देन लीनियर मोमेंटम. ओके, बाकी का सेम है. एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम फोर्स के लिए कांस्टेंट, टॉर्क के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. ओके, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज? थोड़ा सा आपके लिए नया है ये भी. ओके, इसको वेल नोन फॉर्म में लिखना है तो आप एनर्जी के सिमिलर लिख सकते हो. ओके, charge cannot created or cannot destroyed in any process or in isolated process, the total amount of the charge of the body remains constant, right. ऐसा भी आप सिमिलर काइंड जो एनर्जी का हम लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हो. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है बट आइडिया दे रहा हूं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed, or neither created nor destroyed, right. And
total amount of the charge in isolated system remains always constant. Okay, you cannot write here the charge is converted from one form of charge to another form of charge. चार्ज का एक ही फॉर्म होता है, राइट? तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखना है. क्लियर? ओके. और डिटेल वर्ड में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये कैसे या किस प्रकार की सिस्टम होती है? तो कोई भी ऐसे सिस्टम जिसके अंदर चार्ज्ड आइटम, चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंटर होना या उसके अंदर से एग्जिट होना मना है, प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है. ओके, सो द सिस्टम or such a system where the charge particle cannot enter or cannot exit. Okay, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स ना तो एंटर हो सकते हैं ना कि बाहर जा सकते हैं. ऐसे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं. ओके, one more conclusion of the four conservation is that the law of conservation of the any physical quantity which you are talking about that never changes with the time. यानी कि अगर हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, चार्ज के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो टाइम के साथ फिजिकल क्वांटिटी जिसके हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो नहीं बदलेगी. दैट विल नॉट चेंजेस विद द टाइम. क्लियर? ओके, सो यहां पे चारों चार कंजर्वेशन लॉ खत्म होते हैं. बराबर? तो चारों चार कंजर्वेशन के डेफिनेशन अच्छे से याद करने हैं. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या लाइव सेशन में पूछ सकते हो. उसका लिस्ट बनाना है. आपको जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ भी ध्यान में आता है, ओके, कीप राइटिंग, लिख के रखिए, नहीं तो आप भूल जाओगे. तो आपके जो क्वेश्चंस है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो दिमाग में ही रह जाएगी. ओके, तो जैसे ही कुछ आइडिया आता है, दिमाग में आता है, फौरन एक बुक के अंदर उसको पेन पेपर लेके लिख डालो. ओके, और जब भी हमारा लाइव सेशन चलता है तब आप पूछ सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्पेस एंड टाइम इज रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन. आइंस्टाइन की जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर स्पेस और टाइम को इंटर रिलेटेड बताया गया है. यानी कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड है. ओके, यानी कि स्पेस बदलने पर टाइम बदल जाएगा. टाइम हमारे बस की बात नहीं है बदलना. ओके, तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे स्पेस बदल जाता है वैसे वैसे टाइम बदल जाता है. ओके, मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट और रोचक जानकारी देता हूं कि मान लो कि कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, और हाई राइज बिल्डिंग लाइक मान लेते हैं 50 माल या 100 फ्लोर्स ऊंची एक बिल्डिंग है, या ऐसा मान लो कि कोई माउंटेन की शिखर पर, ओके, टॉप पे खड़ा है हिल के, और एक बंदा नीचे खड़ा है. तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए टाइम धीरे चलेगा, और जो बंदा टॉप पे है, ओके, शिखर पर, हिल के टॉप पर खड़ा है, उसके लिए टाइम जो है वो थोड़ा धीरे चलेगा, सॉरी तेज चलेगा. ओके, बट ये जो डिफरेंस है टाइम का, ओके, वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी नेग्लिजिबल. सो दैट इज द रीजन कि हमें ऐसा लगता है कि हर जगह टाइम क्या है, कांस्टेंट है और सेम स्पीड से ही चलता है, बट दैट इज नॉट ट्रुथ. ओके, यानी कि
अर्थ के ऊपर जिस स्पीड से टाइम चल रहा है उतनी ही स्पीड से टाइम अलग प्लैनेट्स पे नहीं चलेगा. ओके. और अर्थ के ऊपर भी हाई राइज और लो राइज यानी कि टॉप पे और बॉटम में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है. ओके. तो ये रोचक जानकारी आपके लिए है. अगर आप इसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहो तो नेट पे भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है. और अगर लाइव सेशन में मौका मिला तो इसके बारे में भी हम और डिटेल डिस्कस करेंगे. चलिए, हमारी जो स्टडी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. तो स्पेस एंड टाइम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहां पे मैंने लिखा हुआ है. बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है. ओके. यानी कि स्पेस एंड टाइम हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोजिनेसिटी एंड आइसोट्रॉपिक नेचर. ओके. यानी कि स्पेस को आप होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक कह सकते हो. सेम वे टाइम को भी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक कहा जाता है. ठीक है. जैसा आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस एंड टाइम आर इंटर रिलेटेड. यानी कि एक के ऊपर आप जो कैरेक्टरिस्टिक लागू करते हो तो सेम वे दूसरे पर भी होनी चाहिए. तो और तो ही कहा जा सकता है बोथ आर इंटर रिलेटेड. चलिए, तो अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. व्हाट इज वी मीन बाय द होमोजीनियसिटी और होमोजीनियस नेचर. ठीक है. सो होमोजीनियस नेचर मीन्स इफ इट possess द सिमेट्री इन ऑल डायरेक्शंस. यानी कि हर तरफ से, हर दिशा में चीजें एक समान तौर पे बिखरी हुई है या एक समान तौर पर अलाइंड है, तो आप उसे होमोजीनियस कह सकते हो. चलिए, यहां पे मैंने फिगर बनाई है. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर इक्विडिस्टेंस. ओके. और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है. ठीक है. अब आप अपने आप को किसी भी एक पॉइंट पर सोच लो. ठीक है. और आप हर डायरेक्शन में देखते हो, कोई भी डायरेक्शन में देखते हो, तो आपको सिमेट्री यानी कि सब जगह एक समान है ऐसा लगेगा. चलिए, ये तो फिगर की बात हो गई. खुद आप जनरलाइज कीजिए. क्लोज योर आइज. ओके. और ऐसा एक्सपीरियंस कर लीजिए कि आप अर्थ से बाहर आ गए हो और स्पेस के अंदर कहीं खड़े हो. आप हर एक डायरेक्शन में देखते हो. ओके. हर तरफ जहां तक आप देख सकते हो वहां हर तरफ स्पेस ही स्पेस है. ओके. तो हर डायरेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? सिमेट्री नजर आएगी. ओके. यहां से सिमेट्री का क्या मतलब है? क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हो या ऐसा देख सकते हो कि किसी एक डायरेक्शन में स्पेस ज्यादा है और किसी एक डायरेक्शन में स्पेस कम? ठीक है. उसको जनरलाइज करने के लिए आप एक किसी कमरे के मिडिल पार्ट में खड़े हो जाओ. अगर वो स्क्वायर है तो आपको चारों चार दिशा में या चारों चार बाजू ऐसा लगेगा कि लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल. बट आप किसी एक कोने में खड़े हो जाओ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि रूम की एक तरफ आपको ज्यादा स्पेस नजर आएगा और आप जिस कोने में खड़े हो उसके पीछे के साइड कम स्पेस होगा. सो देयर इज नॉट अ सिमेट्री इन ऑल डायरेक्शन, यू कैन से दैट. बट हम स्पेस की बात करें, हम अर्थ से बाहर चले गए हैं और हर एक डायरेक्शन में अगर 360 रोटेशन लेते हैं तो आपको कोई एक डायरेक्शन में कम स्पेस है और दूसरी डायरेक्शन में ज्यादा स्पेस है ऐसा नजर आ सकता है? आंसर है नहीं. ओके. सो वी कैन से दैट इन दैट सेंस इफ वी सेट अप ourselves
in a space at a point, then in all directions there is a symmetry. Okay, यानी कि हर एक डायरेक्शन में हमें सिमेट्री नजर आती है. तो इस नेचर को होमोजीनियस नेचर कहा जाता है. तो स्पेस इस नजरिए से क्या है, होमोजीनियस है. चलिए वहां पर सेम थिंग्स आई हैव रिटन इन दी पॉइंट्स दैट एट एवरी पॉइंट यू कैन थिंक योरसेल्फ, at any point you can think yourself, and in all direction there is a symmetry. Such kind of the nature is called homogeneous nature of the space. अब आइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टराइज करते हैं, उसे पॉइंट करते हैं, उसे क्या है समझते हैं. आइसोट्रॉपिक नेचर. चलिए अब मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये पूरा स्ट्रक्चर भी इनफाइनाइट तक फैला हुआ है. ओके, आगे वाला फिगर और इस वाले फिगर में थोड़ा सा अंतर है और काफी अंतर है. ठीक है, अब हम स्पेस को इस नजरिए से देख रहे हैं. ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या खासियत है ये देखिए. अब आपको सिमेट्री प्रूव करने के लिए सेंटर पे खड़ा होना होगा. इफ यू आर एट द सेंटर एंड लुक अराउंड द स्पेस, यानी कि आप सेंटर पे खड़े हो और आपके आसपास हर डायरेक्शन में देखते हो, एंड देन ओनली देन यू कैन सेंस द सिमेट्री इन ऑल डायरेक्शन. यानी कि अब स्पेस में हर डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको सिमेट्री नजर आएगी. बट अगर आप सेंटर से हट जाते हो, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं आप यहां खड़े हो, यहां पे सेंटर पे नहीं, किसी भी अलग पॉइंट पे खड़े हो, और अब आप हर एक डायरेक्शन में देखोगे तो आपको सिमेट्री नजर नहीं आएगी. सिमेट्री नजर नहीं आएगी यानी कि आपको क्या दिखेगा, सारा का सारा स्पेस किसे पॉइंट कर रहा है, किसी एक सेंटर पॉइंट के टुवर्ड्स जा रहा है, ऐसा नजर आएगा. ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, द सिमेट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, यानी कि एंड एल्सवेयर, यानी कि कहीं और आप खड़े रहते हो और देखते हो तो यू कैन ऑब्जर्व द सिमेट्री टुवर्ड्स द सेंटर. तो आपको सेंटर की ओर सिमेट्री नजर आएगी. इस टाइप के नेचर को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर. सच काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by the space and time, यानी कि इसे हम आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं. सो दैट इज द शॉर्ट एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट द होमोजीनियसिटी और होमोजीनियस नेचर एंड आइसोट्रॉपिक नेचर. ठीक है, तो क्या फायदा है ये प्रूव करने का या फिर इसे समझने का. ठीक है, तो उसका फायदा कुछ इस प्रकार है कि इफ वी एक्सेप्ट द होमोजीनियस नेचर ऑफ द स्पेस, यानी कि अगर हम स्पेस के होमोजीनियस नेचर को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर से क्या प्रूव कर सकते हैं. सो वी कैन प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्पेस के कौन से नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा. सो यू कैन आंसर दैट द होमोजीनियस नेचर ऑफ द स्पेस. ये पैर है वो आपको कंपलसरी याद रखनी है. ओके, और स्पेस के आइसोट्रॉपिक नेचर की वजह से आपको कौन सा कंजर्वेशन लॉ मिलता है. आंसर इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, चलिए, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि रोटेशन के टाइम इस टाइप की सिमेट्री होती है, ये गोल गोल घूमता है ऐसा लगेगा, राइट. और लीनियर मूव करने के लिए आपको ढेर सारा स्पेस चाहिए, हर एक डायरेक्शन में इक्वल. सो ये टाइप काम आएगा आपको. सो फ्रॉम दैट डिस्कशन वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस नेचर ऑफ द स्पेस वी गेट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, and because of the isotropic nature of the space we get angular momentum.
क्लियर? चलिए, उसी तरीके से टाइम के पास भी दोनों के दोनों नेचर है. टाइम हैविंग ऑल्सो द होमोजीनियस बाय नेचर, हर तरफ समान. ओके, और आइसोट्रॉपिक, कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होके हर तरफ फैल रहा है. सो बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस नेचर ऑफ द टाइम we can say that we got the conservation of energy. बहुत ही बड़ा और ताकतवर पॉइंट है ये. अगर स्पेस साइंस में आप आगे बढ़ते हो, फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, तो 100% ये आपको काम आएगा कि टाइम होमोजीनियस है. अगर टाइम होमोजीनियस नहीं है तो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी यूनिवर्स के अंदर हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. ओके, सो बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस नेचर ऑफ द टाइम, द एनर्जी इज कांस्टेंट इन एंटायर यूनिवर्स. एंड सेम वे द टाइम इज आइसोट्रॉपिक. बट ये प्रूव नहीं है, ऐसा सजेशन था. किसका था? डिराक का. डिराक हैव अज्यूम्ड दैट बिकॉज ऑफ द आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ द टाइम वी मे गेट, शायद हमें जो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज मिलता है वो उसके नेचर की बदौलत या उसके नेचर के कारण हो सकता है. स्टिल नॉट प्रूव्ड, 100% नॉट प्रूव्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ द आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ द टाइम वी मे गेट, और द डिराक हैव सजेस्टेड दैट देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. ओके, तो ये जो पैर है स्पेस और टाइम की, वो आपको याद रखनी है. ढेर सारी बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, या तो नेचर या तो कौन सा कंजर्वेशन लॉ है, वो अलग अलग तरीके से एमसीक्यू में पूछा जा चुका है. ठीक है, तो 4 कंजर्वेशन लॉ स्पेस और टाइम के होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक के नेचर में से कैसे मिलते हैं, वो आपको कंपल्सरी याद रखने हैं. ठीक है, तो दैट वाज द आइडिया और बिट फ्लैश अबाउट द homogeneous nature of the space, isotropic nature of the space, and same way homogeneous nature of the time and isotropic nature of the time. क्लियर है? सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी. सबसे पहले आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकनेक्टेड by the special equation which is so called E is equals to mc square. Right? Means mass can convert it into energy and energy can convert it into the mass. Right? Then we have learned the definition of angular conservation of angular momentum. वहां पे खास कौन सा वर्ड है? टॉर्क. ओके, टॉर्क किसका फॉर्म है? फोर्स का फॉर्म ही है. ओके, so if external torque acting on the system is 0, then angular momentum remains constant. ये उसकी डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी है. ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन से सिस्टम के लिए लागू हो सकता है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? Isolated system is such kind of the system where no any charge quantity can enter or exit. Okay, so in such kind of the system, the total charge of the system remains always constant. Or in other words, you can say the charge cannot created nor destroyed. The total charge of the system in isolated system. Okay, total charge of an object in isolated system remains always constant. Right? And all kind of the conservation or conservative laws do not change with the time. फिर स्पेस और टाइम की हमने होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में देखा. ओके, सो स्पेस इज होमोजीनियस and time is also homogeneous. So up to the infinite level, you can observe, you can generalize, you can feel the symmetry of the space. तो हमने यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से एक इनफाइनाइट शीट तैयार की और इसके किसी भी पॉइंट पर आप खड़े रहते हो तो आपको हर एक डायरेक्शन में सिमेट्री नजर आएगी. ओके, इस काइंड के नेचर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस नेचर.
ओके। और अगर हम स्पेस को कुछ इस प्रकार से देखें, ओके, यानी जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वहां से ओरिजिनेट होके इनफाइनाइट लेवल पे स्पेस जा रहा है। इफ वी थिंक द स्पेस इन दिस फैशन, देन वी सेंस द सिमेट्री टुवर्ड्स द ओरिजिन और सेंटर। यानी कि अगर हम सेंटर से हट जाते हैं, कहीं और से देखते हैं, तो हमें सिमेट्री सेंटर की ओर जा रही है ऐसा नजर आएगा। इट हैज अ स्पेसिफिक ओरिजिन। ठीक है। सो बाय दैट आइडिया वी कैन से दैट द स्पेस एंड टाइम इज हैविंग द आइसोट्रॉपिक नेचर। अगर स्पेस और टाइम के पास होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक नेचर है तो हमें क्या मदद मिलती है? तो हमें कंजर्वेटिव जो लॉ है उसे समझने में मदद मिलती है। स्पेस के होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक नेचर की वजह से आपको क्या मिलेगा? तो स्पेस के होमोजीनियस नेचर और आइसोट्रॉपिक नेचर की वजह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम मिलता है। एंड सेम वे टाइम के होमोजीनियस नेचर से आपको क्या मिल सकता है? वी कैन से दैट conservation of energy is derived, can explained by the homogeneous nature of the time. Okay, and who has suggested the conservation of the charge? Dirac has suggested the conservation of charge, because of which kind of the characteristic of time we can say the isotropic characteristic of the time. Okay, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और यहां तक, यानी कि यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ओके, सो अथस्य भौतिक शास्त्र गीतस्य प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो भौतिक भगवान की जय।